Did you know what does an owl stand for? Well, an owl is the vahan of हमारी लक्ष्मी माँ का वाहन है, and Diwali is coming very close. So this coming out for all you Librans, Sun Moon Rising, for the 15 days reading from 1st to 15th October. So if you're watching this, this is meant for you, irrespective of when you watch it. So this doesn't have a timeline, but I am doing it for a timeline. But I'm getting a message that this is for you. So hi everyone, I'm Sharon Mehta, tarot card reader, healer, runecaster. My USP is property healing, and I'm a life coach too. So the other charm that is fallen out for all our Librans is the kitty. So if you have ever seen a cat, a cat is meant to be an independent animal which is not dependent on anybody, irrespective of whether the owner feeds them enough. It makes sure that the owner feeds them, and it still survives. It has its own identity and it doesn't care, right? So that's what you're being advised to do. But at the same time, you have the paw of the dog. So means be loyal also at the same time. Be independent but be loyal. So this is all coming out for you. So probably you have some loyal friends around you and you have some independent friends around you. So if you do have such people around you, please do take care of them and be loyal yourself to them. However, when it comes to your love life, I've got so many cards for you. इतने सारे cards आए ना, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को. So सबसे पहला कार्ड है पैराडाइज. सो ये कार्ड बोलता है जॉय, हैप्पीनेस, वननेस विद ईच अदर. सो प्रोबेबली यू हैव स्टार्टेड डेटिंग रिसेंटली, and if you haven't yet started dating, so someone new is coming into your life. So you have to heal faster from all your old wounds. It looks like either you are a runner or you have been chasing somebody all your life, and if you have been chasing someone, this someone is coming in touch with you very soon, and it looks like either you or this person is addicted. Something is telling me if you are the runner, this person is addicted to you, this person keeps chasing you, and if you are the chaser, then you are the one who's addicted and this person keeps running away from you. This person finds some excuse. So please switch roles as per however it is. Somebody is saying I like you, maybe this new person who's coming into your life whom you are trying to heal from. तो ये बंदा जो है आपको बहुत प्यार से बोल रहा है आई लाइक यू, बट आपको लगता है कि ये बंदे ने मास्क पहना है, झूठ बोल रहा है. एंड इफ दिस इज एसोसिएटेड विद समबडी फ्रॉम योर पास्ट हु इज कमिंग फॉर अ रिकंसिलिएशन, देन ये बंदे ने जरूर मास्क पहना है. दिस पर्सन इज नॉट शोइंग द ट्रू फीलिंग्स, बिकॉज ट्रू फीलिंग्स दिखाने के लिए उसको एक्चुअली वो अट्रैक्शन दोबारा एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. वो जो नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं? नॉट टुडे, बिकॉज बाउंड्रीज अभी तक सेट नहीं हुई है. सी व्हेनेवर, जब भी कभी कोई ब्रेकअप होता है, उसका मेन रूट कॉज कुछ हैबिट्स होते हैं, कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, कुछ शब्द जो बोले गए हैं वो जो वापस लिए नहीं जा सकते, वो सब होता है जिसके वजह से ब्रेकअप होता है. अभी जब ब्रेकअप होता है, जब पैचअप होने की बारी होती है, तो नॉर्मली ये होता है कि एक बंदा भागा भागा आता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और दिस पर्सन ऑल्सो लव्स दिस पर्सन. ओके, प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, एंड दे बोथ मीट एंड दे बोथ गेट बैक टुगेदर विदाउट सॉल्विंग द इशू. So you have to set boundaries. You have to solve the previous issues. So because हर relationship में that times तभी आता है when the person is not able to tolerate your nonsense anymore. Either you are this person who's not able to tolerate, or it's the other person who's not able to tolerate. And sometimes it's equal balance. तो जो भी है, मुझे लगता है कि ये resolve होने वाला है. जो भी है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल. आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि प्रे टू आर्कएंजल सेंडोल्फिन. आर्कएंजल सेंडोल्फिन वो एंजल है जो आपके प्रेयर्स डायरेक्टली भगवान के पास लेके जाता है. तो आप उनको प्रेयर करके बोलिए कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सब कुछ दिया, या जो भी कुछ आपको चाहिए उसके साथ ऐड कर देना. बट ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर ऑलरेडी वॉट यू हैव गॉट, बिकॉज हम लोग सब ब्लेस्ड हैं. भगवान ने हम सबको उतना ही दिया है जितना हमने पहले मांग करके नीचे आए थे यहाँ धरती पे. यू आर बीइंग आस्क्ड टू शाइन योर लाइट. अब आर्कएंजल यूरियल इज द एंजल फॉर काउंसलिंग. सो आपकी काइंड ऑफ बहुत ज़बरदस्त काउंसलिंग की ज़रूरत है.
आपके लव लाइफ में। अगर आपका ये सिचुएशन है देन प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा काउंसिल कीजिए, थोड़ा लेट अदर पीपल हेल्प यू एंड यू स्पीक योर ट्रुथ। सच बोलो भाई, अंदर से जो सच है ना, वो जो असलियत है वो आने दो बाहर। कोई बात नहीं, यू नो कुछ लोगों को लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लीज़ सच बोलो। आपका एंसेस्ट्रल मैसेज फॉर दिस 15 डेज की क्या होने वाला है? बेसिकली आई थिंक हमारे जो लिब्रन्स है, सन मून राइजिंग, आप लोगों का ये जो टाइम चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि जिसमें आपको करेज की ज़रूरत है, आपको ये नाइट बनने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर जो सच है ना उसको स्ट्रांगली लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपके जितने भी कार्ड्स आए ना वो सब यही बोल रहे हैं कि आपको ये जो है ये पूरा अपने आप ही सॉल्व करना है, जो भी इशू है। देयर इज़ अ बिग सिचुएशन इज़ व्हाट आई एम गेटिंग टू नो, जिसमें आपको भगवान की ज़रूरत है, एंजल्स की ज़रूरत है, और आपको अपने खुद की करेज फाइंड करके उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड द मैजिक इज़ ऑलवेज विद इन यू, ओके, द मैजिक इज़ विद इन यू। आपको अपना वो जो फायर है इन द बेली, यानी कि आपको अपना सेक्रल चक्र है, सेकंड चक्र को आपको हील करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको अपने आप में करेज ढूंढना है, तो आपको रूट चक्र भी अपना हील करना है, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका, उसमें आप बहुत टाइम से बैठे हुए हो, बहुत टाइम से आपने अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया है। इट्स हाई टाइम आप अभी ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। पास्ट को जाने दो। पास्ट को आप जाने कैसे दोगे? सबसे पहले अपने आप को माफ़ करो। आपने कुछ गलत नहीं किया, जो सिचुएशन था उसके हिसाब से आपने डील किया, मगर आगे वाले पर्सन को शायद ये पता नहीं है कि आपने ये क्यों किया, तो आपको बताना ज़रूरी है। अपना सच सुनाना बहुत ही ज़रूरी है। स्पीक योर ट्रुथ एंड the old needs to go. Now this is a very special deck and very close to my heart. This is called the angel and ancestral oracle guide. तो ये जो है आपके लिए गाइडेड मैसेजेस हैं। तो स्नेक क्या होता है? स्नेक इज नॉट अ बैड एनिमल व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से स्नेक तो हमारे शिव जी ने भी अपने गले में धारण किया हुआ है। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ स्नेक? सिंबल ऑफ स्नेक, जैसे आउल का स्नेक है विजडम, ठीक है। सिमिलरली स्नेक का सिंबल है चेंज, ठीक है। स्नेक इज़ वन ऑफ दोज रेप्टाइल्स जो अपना पूरा स्किन डिस्कार्ड कर देता है एंड नया स्किन लेता है। सो इट्स एंडिंग्स न्यू बिगनिंग। मगर आप अपना स्किन तब डिस्कार्ड कर सकते हो जब आप एक्सेप्ट करते हो कि अभी ये ख़त्म हो गया है, अभी इसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे ये कदम उठाने पड़ेंगे, मुझे आई विल हैव टू गो थ्रू दैट पेन। वो जो इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस इज फॉर ऑल द स्नेक to let go of their skin. So to let go of your past, to let go of that pain, to let go of all the suffering, आपको ये process के through जाना ही पड़ेगा. This is what this card is telling you. Now coming to how is these 15 days going to go for you? It looks like आपको ये जितना भी मैंने बोला है ना, सब काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा. There is nobody who's going to help you. But the doors of the spirit is opening for you. तो ये 15 दिन में आप बहुत सारे अपने बारे में डिस्कवर करोगे और आपको हेल्प मिलेगी फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो आपके आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। एंड मे बी एक जो जर्नी आपने प्लान की थी, मे बी यू हैड प्लान कि यू विल गो समवेयर, वो शायद पोस्टपोन होने की चांसेस हैं, यू नो। तो जो भी है, आई वुड सजेस्ट कि the 15 days is going to be awesome for you, just like good wins over evil and Dashera is coming very soon. वैसे ही आप का जो अंदर का जो रावण है वो आप खुद ही मारोगे और कोई और नहीं मारने वाला है। उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई होप यू लाइक दिस मैसेज फॉर योर सेल्फ। आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड अ कपल ऑफ मैसेजेस ओवर हियर। सो जो मैसेजेस मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी हैं, काफ़ी टाइम से आ चुकी हैं, मगर शायद आप अपने आप से सच नहीं बोल रहे हैं। यू आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ टू योर सेल्फ। सो दैट इज़ वाई स्पीक योर ट्रुथ का कार्ड आया है, श्रेड योर पास्ट आया है, नाइट, यानी कि यू हैव टू बी योर ओन नाइट इन शाइनिंग आर्मर। सो देयर इज समथिंग दैट यू हैव हिडन फ्रॉम एवरीवन। वो सच बोलने का समय आ गया है।
ठीक है, stop lying to yourself and stop lying to others, and maybe there is somebody in your life who's lying to you also. आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप रेस्ट नहीं कर सकते, you're not resting, you're not taking that मेडिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो. अगर आप कर भी रहे हो तो वो पूरा 100% नहीं कर रहे हो. दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज़ फॉर दो सम फ्यू पीपल. एंड डिस्क्लेमर तो जाता है कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो मे बी इट मे रेजोनेट with all and may not resonate with all. So if till now you find even 1% of whatever is resonating with you, please do like, share and follow and save this reel so that by the time you finish 15th October तो आपको समझ में आएगा ये कितना resonate किया और कितना नहीं resonate किया. And आर्कएंजल माइकल आपको बोल रहे हैं कि time to heal and you are trying your level best to heal and you should heal also. ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. जब आप हील करोगे ना तब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी. But you have to heal for that. Librans, happy birthday to you and I'm sure you all will have a fantastic time discovering yourself, accepting and forgiving yourself and forgiving others. So see you on 16th of October. Till then, bye bye, take care.